Good morning, student. This video is all about class 10th NCERT chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.2 introduction, and the topic is that nth term of an AP. nth term means क्या होता है? Means in an AP what is the last term, यानी उस last term का फार्मूला क्या होगा, उसके ऊपर कैसे हम अप्लाई करेंगे रियल सिचुएशंस में. ओके, सो ये सब हम देखेंगे. सो nth term of an AP. AP you all know that what is an AP? AP is what? It is a list of numbers obtained by adding a fixed number to the previous one. Is called an arithmetic progression. So in that arithmetic progression, what will be the last term? That is only the nth term. Is there any formula, particular formula for that last term? Yes, is there. So what is that? We will see now. चलो अभी हम देखते हैं वो nth term क्या है. So okay, we all know that. Let first term be A and common difference is D. Then our AP will be first term is A and the second term is A plus D and the third term is A plus 3D and the next A plus 2D, next is A plus 3D comma and so on. It will go till the nth term, so that is AN. So now what is this nth term formula? What is this nth AN will represent? That only we have to find. Very simple. See, and we all know that the first term of an AP we will denote as a A1, second term as a A2, third one as a A3, fourth one as a A4, and it goes on. And that is the last term is the nth term. This is what? Nth term. So now see here, this A1 which is equal to A only, but here any D term is there? No, but we can write like this, A plus 0D, yes, and this 0D we can represent like this, A plus 1 minus 1 into D, yes. Next, now second term A2, that is what? A plus D. Here we are having only 1 D, so this we can write like this, A plus 2 minus 1 into D. 2 minus 1, the answer is 1. 1 into D is the 1D. So A plus D means A plus D also we can write as A plus 2 minus 1 into D. And the third term A3, that is A plus 2D. So here this 2D we can write 3 minus 1 into D. Yes, why not? So A plus 3 minus 1 into D. So this also represents the third term, that is A plus 2D. Next A4, that is the fourth term, A plus 3D. So here 3D also we can write as a 4 minus 1 into D. So A plus 4 minus 1 into D. So let us continue this process till nth term. That is what? AN. So what we can write? See, the first term is same plus. Now here we are subtracting 1 from that term. So here is the nth term, so we have to subtract 1 from that nth term n into the common difference is D. So this is only the formula for nth term of an AP, that is A plus n minus 1 into D, where A is a first term and D is the common difference, and n will be the order of term. Not here n is number of terms. Here n is what? Order of term. यानी उस term का हमें order देता है. That is fifth term or sixth term or 10th term. So this is the nth term of an AP is A plus n minus 1 into D. And sometimes this nth term, which is the last term, so we can represent as a last term also, denote as a L. So same formula we can use, A plus n minus 1 into D. Nth term of an AP or the last term of an AP, the formula is same, so that is A plus n minus 1 into D. So this is the complete, means simple derivation of the nth term of an AP. I hope you all understood very well. So before proceeding to the examples, please pause the video to note it down.
Okay, students, this is the example 3 on the basis of topic nth term of NAP. So the question is that find the 10th term of the AP. Here हमारे पास AP दिया हुआ है और उसका 10th टर्म यानी 10वां टर्म क्या होगा हमें निकालने के लिए बोल रहा है. वेरी सिंपल है. देखो, लेट अस राइट द AP सॉल्यूशन. The AP is given 2, 7, 12 and so on. अभी हमने पढ़ चुके हैं nth टर्म ऑफ एन AP a plus n minus 1 into d. सो हमें 10th टर्म पूछ रहा है यानी a10 हमें फाइंड करना है. a10 is equal to how much? सो वेरी सिंपल. सो ये a10 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास? एक तो a चाहिए और एक दूसरा कॉमन डिफरेंस. हम क्या फाइंड करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? a is 2. द कॉमन डिफरेंस d. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? The difference between any two consecutive numbers which will give us the common difference, so that we can write as a a2 minus a1. So that is 7 minus 2. So answer is 5. So let us apply in that formula. So an formula is a plus n minus 1 into d. Using this formula we can write the 10th term also, that is a plus 10 minus 1 into d. So apply the values. A first term is what? 2 plus 10 minus 1 into d. What is the d common difference? 5. Next 2 plus 10 minus 1 9 into 5. Next 2 plus 9 5 ja 45. Next 45 plus 2 47. So the 10th term of given AP is 47. अगर इस एपी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो 10वां टर्म हमें कितना मिलेगा? 47. यही था सिंपल आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन. Okay students, the next example 4, that is which term of the AP is minus 81? Also is any term 0? So give reasons for your answer. हमारे पास एक AP दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि उस AP का ऐसा कौन सा टर्म है यानी उसका वैल्यू माइनस 81 है, और वैसे ही पूछ रहा है ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 0 है. सो गिव रीजन फॉर योर आंसर. उस आंसर के हमें मतलब रीजंस देना है. चलो लेट अस सॉल्व इट. द AP is given 21, 18, 15, and so on. So let us find the first term A, that is 21. Next common difference A2 minus A1, that is the difference between any two consecutive numbers. So second term is 18 minus the first term is 21. So 18 minus 21. So answer is minus 3. Now we have to find ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू माइनस 81 है. सो वो कौन सा टर्म है हमें मालूम नहीं है. ओके, सो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n रखेंगे. लेट नंबर ऑफ टर्म सॉरी एक काम करेंगे. So we will assume that this is only our nth term यानी last term. Let nth term of NAP is we will take as a minus 81. हमारे पास जो AP दिया उसी का हम लास्ट टर्म n इसको 81 मानेंगे. So if we got the n value as a positive integral, then we can say that this minus 81 will be the term of this AP. वो कौन सा टर्म है हम दिखाएंगे. So अगर ये 81 हो गया इसका मतलब हमारा an कितना हो जाएगा? माइनस 81. और an का वैल्यू तो सबको पता है यानी फार्मूला nth टर्म ऑफ NAP, that is what? a plus n minus 1 into d, which is equal to minus 81. So let us solve it. First term a, that is 21 plus n minus 1 as it is, because n का ही वैल्यू निकालना है, into d. d कितना हमारे पास? minus 3 will be is equal to minus 81.
Here plus 21, that side sending so minus 21 means n minus 1 into minus 3 will be equal to minus 81 and here plus 21 उधर जाके कितना हो जाएगा minus 21. So next n minus 1 into minus 3 will be is equal to, here both the numbers are having same sign, so we will add and we will put the same sign before the result. So 81 plus 21, so answer कितना हो जाता 102 और उनके सामने same sign put करना पड़ेगा minus. Next here minus 3 is multiplying, that side sending so divide, so n minus 1 will be equal to minus 102 upon minus 3. So minus minus will be get cancelled and here we can cancel 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So n minus 1 will be is equal to, we got 34. Now here is minus 1, that side sending so plus 1, so n will be is equal to 34 plus 1, so n will be is equal to 35. So we got here n value as a how much 35 means ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू minus 81 है, 35th term is the minus 81. So we can say that therefore the value of 35th term is minus 81. हमें वही निकालना था, कौन सा टर्म है उसका वैल्यू minus 81 है, तो वो टर्म कौन सा है 35th टर्म है. ओके, सो ओनली हाफ आंसर कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट पूछ रहा है कि आल्सो इज एनी टर्म जीरो, ऐसा कोई टर्म है क्या उसका वैल्यू जीरो है. सो सेम प्रोसेस करना है. अभी फिर से हमें जीरो को क्या मानना पड़ेगा nth टर्म. लेट nth टर्म बी जीरो मींस अभी an कितना हो गया हमारा जीरो. सो nth term of any AP formula is what, a plus n minus 1 into d which is equal to 0. So let us apply the values of a and d. What is the a 21 plus n minus 1 into d, what is the d minus 3 will be equal to 0. Here plus 21, that side sending so minus 21, so n minus 1 into minus 3 will be is equal to, यहाँ का plus 21 इधर आने से minus 21 हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा. सो n minus 1 will be is equal to minus 21 upon minus 3. So minus minus will be cancelled. Next 3 1s are 3, 3 7s are 21. So n minus 1 will be is equal to 7. So here we will get n is equal to 7. इधर का minus 1 इधर आने से क्या हो जाएगा plus 1. So n will be is equal to 8. सो कौन सा ऑर्डर आ गया हमारे पास n का 8, यानी 8th टर्म है उसका वैल्यू कितना है 0. ओके, यही पूछ रहा है इज एनी टर्म 0, यानी ऐसा कोई भी टर्म है क्या उसका वैल्यू 0 है. यस, जो 8वां टर्म है उसका वैल्यू कितना है 0. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay students, the next example 5, that is determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. हमारे पास थर्ड टर्म दिया है और सेवंथ टर्म दिया है और हमें पूछ रहा है कि AP को डिटरमाइन करना है, यानी AP को लिखना है, हमें AP को फॉर्म करना है यूजिंग थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म. ओके, लेट अस सी द आंसर. थर्ड टर्म यानी A3 दिया है हमारे पास कितना 5. नेक्स्ट दिया सेवंथ टर्म यानी A7 दिया है कितना 9. और हमें मालूम है थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं हम, a plus 2d will be equal to 5 एंड सेवंथ टर्म हम कैसे लिखते हैं a plus 6d will be is equal to 9. हम मानेंगे this is our equation 1 and this is equation 2. Now solving like a linear equations in two variables. So here if you subtract 1 from 2, so we can eliminate the a, so we will get the value of d and the d value we will put either in 1 or 2, then we will get the d value. अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम AP को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. सब्ट्रैक्ट 1 from 2, यानी 1 को 2 में से निकाल रहे हैं तो पहले 2 को निकालना लिखना पड़ेगा. a plus 6d will be equal to 9. जब 1 को माइनस करें तो उसको सेकंड लिखना है, a plus 2d will be is equal to 5. While subtracting any expression from another expression, so second expression,
एवरी टर्म साइन विल चेंज, हर एक टर्म का साइन चेंज होते जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो अभी प्लस है माइनस है कितना हो जाएगा 0। 6d माइनस 2d यानी 6d में से 2d चला गया तो कितना बचेगा 4d विल बी इज इक्वल टू 9 में से 5 चला गया कितना हो जाएगा 4। सो d विल बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4/4 यानी d विल बी इक्वल टू 1 यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना निकल के आ गया 1। अभी इस d का वैल्यू 1 को हम पुट करेंगे या तो 1 में या तो 2 में। सो पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते तो क्या मिलता है देखेंगे a प्लस 2d विल बी इज इक्वल टू कितना है 5। सो a प्लस 2 इंटू d कितना है 1 विल बी इज इक्वल टू 5। सो a प्लस 2 विल बी इज इक्वल टू 5। सो a प्लस सॉरी a इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2 है उधर बेस कितना होता है माइनस यानी 5 माइनस 2। सो आंसर कितना हो गया 3। सो a का वैल्यू निकल के आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकल के आ गया 1। सो अभी हमें AP को फॉर्म करना होगा। AP को कैसे फॉर्म करते हैं एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। सो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है सो रिक्वायर्ड AP। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a दैट इज 3। अभी फर्स्ट टर्म को हमें कौन सा नंबर ऐड करना है फिक्स्ड नंबर। उस फिक्स्ड नंबर का दूसरा नाम क्या है कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस कितना है 1 यानी 1 ऐड करते जाएंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 and so on. So this is our required AP. Okay, so please pause the video to note it down. Okay, the next question is that example 6. Check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। ये है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें ऐसा कोई टर्म है क्या उसका वैल्यू 301 है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर बोला एपी नहीं बोला है। सो लिस्ट ऑफ नंबर यानी हमें चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो भी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे। द लिस्ट ऑफ नंबर गिवन 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो भी है एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं है। सो हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम रहेगा तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं। सो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 और 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट a3 माइनस a2 दैट इज 17 माइनस 11 6। नेक्स्ट a4 माइनस a3 23 माइनस 17 सो 6। यस देखो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट thus ak plus 1 minus ak is same यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी को क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी यानी जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं। अभी हमें चेक करना है ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 301 है इस एपी का। सो कौन सा टर्म है हमें मालूम नहीं है। सो हम क्या करेंगे इसी को nth टर्म मानेंगे, इसी को हम लास्ट टर्म मानेंगे। अगर इसी को nth टर्म मानेंगे तो जो भी n का वैल्यू रहेगा वो हमें एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर देना चाहिए तो तब जाके बोल सकते हैं कि ये उसका टर्म है, नहीं तो नहीं है। ओके सो लेट nth टर्म बी 301 यानी हमारा an कितना हो जाएगा 301 और an का फार्मूला तो सभी को मालूम है nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 301। सो हमारा फर्स्ट टर्म a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 6 विल बी इक्वल टू 301। यहाँ पे प्लस 5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा n माइनस 1 इंटू 6 विल बी इज इक्वल टू 301। यहाँ का +5 उधर जाने से हो जाएगा -5। सो n माइनस 1 इंटू 6 विल बी इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज 6। यहाँ पे कितना बचेगा 9
और यहाँ पे कितना बचेगा 2, सो 296 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से डिवाइड होगा, सो n-1 विल बी इज इक्वल टू 296 अपॉन 6। अब इसको हम कौन से टेबल में कट करेंगे? 6 टेबल में कट होता है क्या? नहीं है, सो हम 2 टेबल में कट करेंगे। 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 148 अपॉन 3। सो नेक्स्ट n-1 विल बी इक्वल टू आंसर आ गया 148 अपॉन 3 आ गया। सो यहाँ पे -1 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू 148/3 +1, सॉरी +1, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो n विल बी इक्वल टू 148 + 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय उनका एलसीएम कितना हो गया? 3। सो n विल बी इक्वल टू 148 + 3 कितना हो जाएगा? 151 अपॉन 3। सो ये जो भी n का वैल्यू है क्या है? वो फ्रैक्शनल नंबर है। कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शंस हो सकते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ टर्म नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी टर्म नहीं है कि उसका वैल्यू 301 हो। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हियर n cannot be fraction। ओके कभी भी n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी हमें सिर्फ वो नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर देगा, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 301 है इस एपी का कोई भी टर्म हो सकता है, नहीं तो नहीं है। सो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, सो हम बोल सकते हैं कि 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। सो देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। सो जो एपी दिया है हमारे पास उस एपी का ऐसा कोई भी टर्म नहीं है उसका वैल्यू 301 हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next example, that is the 7. How many 2-digit numbers are there divisible by 3? I said 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, वो निकालना है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं? 10 से लेकर 99 के बीच में। सो ये 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसे कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स है वो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होंगे। सो पहला नंबर तो कितना हो जाएगा? 12। सेकंड कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट हो जाएगा 18 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कौन सा होगा? 99। सो ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे? 3। बट ऐसे कितने टर्म्स है वो हमें निकालना है। ओके सो द फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 12। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1 मींस the difference between any two consecutive numbers will give us the common difference, यानी 15 - 12। सो कितना हो जाएगा? 3। और देखो ये तो लास्ट टर्म है ना, सो इसी को हम बोल सकते हैं an विल बी इक्वल टू कितना है? 99। हमने ऑलरेडी जनरल nth टर्म ऑफ एपी फार्मूला में बताया था, जो लास्ट टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। सो हमारे पास यहाँ पे nth टर्म ऑफ दिस एपी दे दिया 99। सो अभी हमें क्या फाइंड करना है? n इज इक्वल टू हाउ मच, यानी अब इसमें टर्म्स पूरे कितने हैं। सो वेरी सिंपल, nth टर्म ऑफ एपी फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू आंसर कितना है? 99। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। a कितने हमारे पास? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने हमारे पास? 3 विल बी इज इक्वल टू 99। यहाँ पे प्लस 12 उधर भेजेंगे तो माइनस n माइनस 1 इंटू 3 विल बी इज इक्वल टू 99 माइनस 12। सो नेक्स्ट n माइनस 1 इंटू 3 विल बी इक्वल टू, सो 99 में से 12 को घटाना है। So 9 minus 2 7, 9 minus 1 is 8. Now here 3 is multiplying, that side sending, so divide. So n minus 1 will be equal to 87 upon 3. So we can cancel in 3 table. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 2 7 27 होता है। So 3 9 जा 27। So n minus 1 will be equal to 29 आया है। सो यहाँ पे -1 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। सो n will be equal to 29 + 1, सो n हो गया 30। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गया? 30। यानी इस एपी में, यानी यहाँ पे यानी 2 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हैं वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे?
30 नंबर्स यानी 30 टू डिजिट नंबर से वो पूरे 3 से डिविजिबल होंगे। हम फाइनल आंसर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी पूरे 30 टू डिजिट नंबर है वो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next example is that 8. Find the 11th term from the last term. हमें 11th term निकालना है from last term से, और ब्रैकेट में दिया है towards the first term, यानी लास्ट से फर्स्ट टर्म आते समय हमारे को 11वां टर्म निकालना है कि वो क्या होगा ऑफ द एपी। ओके, सो वेरी सिंपल फार्मूला है यहाँ पे एक छोटा सा। सो एपी क्या दिया हमारे पास 10, 7, 4 एंड सो ऑन अप टू -62, ये हमारे वहां एपी दिया है। ओके, सो एक सिंपल फार्मूला है दैट इज सी mth term from last, और we can write end। mth term from last यानी mth term यानी जो भी 11th होगा 12th होगा, mth term from last will be equal to एक सिंपल फार्मूला है n minus m plus 1 term from beginning। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। mth term from end from last will be equal to n minus m plus 1th term from beginning। इधर से जाते समय लास्ट, उधर से आते समय बिगिनिंग का टर्म देता है। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एपी में पूरे कितने टर्म्स वो निकालना है। mth टर्म मतलब हमें मालूम है, यानी क्या दिया यहाँ पे 11th टर्म। सो m क्या हो जाएगा हमारा 11। बट जो भी हमें सॉल्व करने के बाद जो भी टर्म मिलेगा वो किधर से निकालना पड़ेगा, फ्रॉम बिगिनिंग निकालना पड़ेगा। वही हमें को क्या देगा mth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये एक मेथड होता है। चलो अभी निकालते हैं इसमें पूरे कितने टर्म्स है, यानी n का वैल्यू निकालना है। सो a कितना है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 -1 यानी 7 - 10, आंसर हो जाएगा -3। अभी हमको क्या निकालना है n विल बी इक्वल टू हाउ मच। बट देखो हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया, यानी an दे चुका है -62। सो अभी यहां से हम nth टर्म निकालेंगे, n निकालेंगे। nth टर्म ऑफ NAP दे दिया -62। सो nth टर्म ऑफ NAP फार्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d which is equal to -62 ऑलरेडी दिया है, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, फिर उसको जाके इसमें हम पुट करेंगे। ओके, सो a कितने हमारे पास 10 प्लस n minus 1 into d कितने हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3 विल बी इक्वल टू -62। हियर +10, यहाँ पे +10 है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। सो n minus 1 into -3 will be equal to -62, और इधर का +10 उधर जाके -10 बनेगा। सो n minus 1 into -3 will be equal to -62 -10 कितना हो जाएगा -72। यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। सो n minus 1 will be equal to -72 upon -3। सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। नाउ यहाँ पे -1 है, उधर भेजने से +1 हो जाएगा, यानी n विल बी इक्वल टू 24 + 1 यानी n हो गया 25। यानी इस एपी में पूरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसमें पुट करेंगे n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 25 माइनस mth टर्म यानी हमें कौन सा टर्म निकालना है 11th टर्म, यानी 11 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, किधर से फ्रॉम बिगिनिंग से। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 25 में से 11 गया, कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 यानी 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें कौन सा आंसर मिलेगा 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से मिलेगा। सो 15th टर्म कैसे लिखेंगे a15 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 14 d लिखते हैं। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे a कितने हमारे पास 10 है प्लस 14 इंटू d कितने हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3
सो ये हो गया 10, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 कैरी 1 एंड 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4, सो माइनस 42, सो माइनस 42 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा माइनस 32, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, इस एपी में 11th टर्म फ्रॉम आखिरी से लास्ट से कितना है उसका आंसर माइनस 32, सो दिस इज द आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. You have to remember this is the formula while finding any term from the end of the AP towards the first. So that is mth term from last which is equal to n minus m plus 1th term from beginning होता है. This is the formula and important formula this one. Okay, so please pause the video to note it down. Okay student, the next example 9, that is a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है 8% और सिंपल इंटरेस्ट के साथ हर साल. नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. हमें हर साल खत्म होने से पहले हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट. सो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी. ये जो भी इंटरेस्ट है हर साल निकालने के बाद वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं चेक करना है. नेक्स्ट, इफ सो अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स. अगर यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट हो रहे हैं अगर वो एपी को फॉर्म करेंगे तो हमें 30 इयर्स के बाद यानी 30वें साल में यानी 30वां साल में उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो भी निकालना है. मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, यानी इस फैक्ट को यूज करके हमें 30 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालना. सिंपल इंटरेस्ट वेरी सिंपल है, बहुत आसान है क्वेश्चन. सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला सभी को मालूम है, प्रिंसिपल टाइम्स रेट टाइम्स टाइम इनटू टाइम अपॉन 100 होता है, PRT अपॉन 100 बोलते हैं हम. सो चलो हम निकालते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है घबराने का. इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया 1000 इंटू रेट कितना दिया है 8% इंटू टाइम कितना दिया 1 ईयर अपॉन 100. 20 कट हो गया. सो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 10 8 जा 80, यानी एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 80 रुपीज. सो सिमिलरली निकालेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. सो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट तो वही रहेगा, टाइम चेंज होगा. यहाँ पे टाइम कितना बोला 2 साल. सो टाइम हो जाएगा 2 अपॉन 100. फिर से 2 zeros कैंसिल. नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 16 10 जा 160. नेक्स्ट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, जस्ट टाइम चेंज हो जाएगा. दैट इज 3 अपॉन 100. सो 100 cancel, so it means 20 cancel. So now 8 3 are 24 10s are 240. Next, interest for interest at the end of fourth year. So that is principal is 1000, rate is 8. Now the time is changing, so 4 years upon 100. So 20 cancel. Now 8 4s are 32. So 32 10s are 320. So हमें इतने सारे नंबर्स काफी है हमें चेक करने के लिए वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं है. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर जो भी है एपी को फॉर्म कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? इन सभी नंबर का कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है. We can say that the list of numbers forming an AP with common difference that is 80 rupees. सारे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, तो इसलिए वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं. सो इफ they are forming an AP, if so find the interest at the end of 30 years.
यानी तीसरे साल में उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। सो A30 विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, सो A30 हम कैसा लिख सकते हैं, A30 विल बी इज इक्वल टू A प्लस 29D लिखते हैं। सो A यानी फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 80 प्लस 29 इंटू डी, डी कितने हमारे पास 80। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, सो 80 एज इट इज प्लस 8 9 जा कितना होता है 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 कितना होता है 16 प्लस 7 23, 16 प्लस 7 23 होता है, और एक जीरो बच गया तो यहाँ पे एक जीरो। सो आगे आंसर हमारे पास 2320, और उसमें कितना जोड़ना है 80 जोड़ना है, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, सो 1 प्लस 3 4 एंड 2। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, यानी तीसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2400। So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next example, that is example 10. In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 rose plants in the second row, 19 rose plant in the third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. So how many rows are there in a flower bed? Okay, so देखो हमारे पास कुछ ऐसा एक फ्लावर बेड है, फर्स्ट रो में बोल रहा है कि 23 है, सेकंड में 21 है, थर्ड में 19, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितने हैं 5 है। सो ऐसे पूरे कितने रोस है हमें निकालने के लिए बोल रहा है। सो हाउ मेनी रोस आर देयर इन दिस फ्लावर बेड, ये क्या है एक फ्लावर बेड है। सो इसके अंदर ऐसे पूरे कितने रोस है हमें निकालना है, ये पूरे कितने रोस है हमें निकालना है। वेरी सिंपल है, चलो इसको हम लिस्ट ऑफ नंबर्स को अच्छे से लिखते हैं। सो 23 है फर्स्ट रो में, सेकंड में 21 है, थर्ड में 19 है, और ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म में कितने है बोल रहा है 5। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ये 23 है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 minus a1 मींस the difference between any two consecutive numbers will give us the common difference, that is 21 minus 23। so आंसर हो जाएगा -2। और हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज, यानी n का वैल्यू निकालना है, यानी कितने टर्म्स है, यानी कितने रोज है इधर। सो an यानी लास्ट टर्म, देखो इस एपी में लास्ट टर्म कितना दिया है 5। सो हमारा an कितना हो गया 5। सो यहां से हम n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, nth टर्म ऑफ n AP an। सो फार्मूला तो आप सभी को मालूम ही है, सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 5। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, a कितने हमारे पास 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितने हमारे पास -2 विल बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस 23 है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा माइनस, सो n minus 1 into -2 will be is equal to 5 minus 23। so ये हो जाएगा n minus 1 into -2 will be is equal to 23 में से 5 को घटाना है, so ये हो जाएगा -18। नेक्स्ट यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजने से क्या होगा डिवाइड होगा, so n minus 1 will be is equal to -18 upon -2। so माइनस माइनस कैंसल, और 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 10। सो बाकी का आंसर इधर लिखेंगे। सो यहाँ पे -1 उधर भेजने से क्या हो जाएगा +1। सो n विल बी इज इक्वल टू 9 + 1 एंड n विल बी इज इक्वल टू 10। सो n हम किसको माना था नंबर ऑफ रोज, n क्या है हमारे नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज कितने निकल के आ गए 10, हमें यही निकालना था हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। सो हम बोल सकते हैं कि therefore there are 10 rows in the flower bed, यानी इस फ्लावर बेड में ऐसे पूरे कितने रोज है हमारे पास 10 रोज है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर एंड this is the complete introduction of exercise 5.2
So I hope you all understood very well. So now we will see you in the next video with the exercise 5.2 solutions. Till then, bye.